Namaste everyone and welcome back to your one-stop channel for UPSC Insight. Today we will discuss the most relevant current affairs for the UPSC CSE 2026 prelims. The topics that we will discuss are Ramsar Convention, Swachh Sarvekshan 2024, Kara Directions for Child Adoption Support, Pulavan Banakar Chela Link Project, SC Verdict Equal Succession Right for Tribal Women, National Financial Reporting Authority, Economic Census, MOSP Integration Proposal, Simbex Naval Exercise India and Singapore, PM Vikas, a Minority Skill and Entrepreneurship Scheme, Global Findex 2025, World Bank Report, Urban Wind Stealing Effect, Aerosol Study, Akash Prime Missile DRDO Test, and matter and antimatter asymmetry, sun breakthrough, and places in news, that is Bolivia. Let's discuss the first topics of today. That is the report that is called Global Wetland Outlook 2025 under the regime of Ramsar Convention. Friends, the Ramsar Convention is an international treaty for conservation and sustainable use of wetland named Ramsar after a city in Iran. It was adopted on 2nd February 1971 and came into effect into 21st of December 1975. India joined the treaty at 1st February 1982. The 2nd February is celebrated as World Wetland Day each year. If we will see the definition of wetland are the area of marsh, fen, peatland or water, natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including marine area up to 6 मीटर डेप्थ. तो दोस्तों जो 6 मीटर डेप्थ की बात है इसमें ये इम्पोर्टेंट है. तो why Ramsar Convention is important? Because it gives the conservation of wetland, global framework, wise use principle and legal backing and global recognitions. The key component of Ramsar Convention is Montreal's record. The list of in Montreal's record there are the list of Ramsar sites where the ecological character has changed and requiring urgent attention. Please give the example of Montreal's record sites in India in comment box. The Ramsar sites are the wetland of international importance designated by member country. In India, the total Ramsar site today is 80 plus sites. The first Ramsar site of India is Chilka Lake. It gets its Ramsar status in 1981. Along with the Chilka Lake, there is another place called the Keolia Dev National Park in Rajasthan. It also received a Ramsar Convention site. The largest Ramsar Convention sites in India is Sundarban, and the smallest is Renuka Lake. The state with most Ramsar site is Tamil Nadu, which has 14 plus Ramsar site. Now friends, let's discuss the today's report. That is Global Wetland Outlook 2025. The wetland span over 1800 million hectare globally, so 22% of wetland lost since 1970. LMIC report more wetland. The low income countries or lower middle income country reports some more wetland in poor condition as the Africa wetland among the most degraded wetlands. The Ramsar Convention goals align with the Kunmin Montreal Global Diversity Framework target. The major threat of the Ramsar sites are due to unplanned urbanization, rapid industrializations, infrastructure development. The best case study are the Regional Flyover Initiative, where the 3 billion partnership restoring the 140 plus wetland across Asia benefiting migratory bird and 200 million people. The Seychelles issue the world's first sovereign blue bond. The way forward to conserve the wetland areas are to integrate the wetland into the national planning and natural capital accounting, recognition of wetland role in the global hydrological cycle, and promote the innovative financial tool green bonds, blue bond, and result oriented financing. The Ramsar Convention that we have already discussed is ratified by India in 1982. The wetland has provided the two kinds of services. One is the provisioning services, which gives the food, water, raw material, genetic resources, ornamental resources to the human being and the other kind of life. And it's also regulating services like air quality regulation, waste treatment, climate regulation, erosion prevention,
moderation of extreme event, biological control in the water flow regulations. Let's move toward the next news. Swachh Sarvekshan 2024-25 awards have been recently declared. These are the ninth edition of the world's largest urban cleanliness survey. The theme of this survey is reduce, reuse, and recycle. In this survey, there are the five type of classifications. One is the million plus, other is big, medium, small, and very small. According to the population of the people residing in that area, there is 78 award across the four categories that have been distributed recently. The Super Swachh League cities include the Indore, Surat, and the Navi Mumbai. Top three cities are the Ahmedabad, Bhopal, and Lucknow. Special categories are the Ganga Town Cantonment Board, Safai Mitra Suraksha, and Mahakumbh. The state level 34 city awarded the promising clean city. Swachh City Partnership, the each top city mentor one poor performing city. The Swachh Sarvekshan survey launched in 2016 under the Swachh Bharat Mission Urban Program. These are conducted by the Ministry of Human Housing and Urban Affairs. These are done by the third party verification. Component from the urban local bodies. Components are the data from the urban local bodies are received. Document the field assessment are done. Certifications for the ODF plus, ODF double plus, or water plus are done in this survey. The weightage for the 80% weightage are given to the surveys and 20% to the certification. Accelerated dump sites remediation program are also conducted along this survey, where the 1 year initiative to remedy legacy waste in the bush scientific processing. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों. रिसेंटली कारा जो कि सेंट्रल अडॉप्टेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्होंने चाइल्ड अडॉप्शन सपोर्ट सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी को कुछ डायरेक्शंस इशू की हैं. तो स्टेट अडॉप्शन रिसोर्सेज एजेंसी को जो की डायरेक्टिव्स हैं वो स्ट्रेंथन करना है. साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, अडॉप्टेड चिल्ड्रंस और बायोलॉजिकल पेरेंट्स. सारा जो है स्टेट अडॉप्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी को इम्पैनल करना है क्वालिफाइड काउंसलर्स को डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, और SAA और DCPU को असेस करना है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की नीड को. अडॉप्शन फ्रेमवर्क जो इंडिया में है उसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है. इसमें जो लॉ आते हैं वो आते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि 2021 में अमेंड हुआ था, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सेंट्रल अथॉरिटी CARA जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुई है. इंटरनेशनल अडॉप्शंस के लिए जो है ये हेग कन्वेंशन से गवर्न होता है, जो कि इंडिया ने 2003 में रेटिफाई किया था. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों. पोलावरम और बंका चरेला लिंक प्रोजेक्ट डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं. तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश को कहा है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट 2014 को फॉलो नहीं कर रहा है. इस प्रोजेक्ट में गोदावरी नदी में नियर रामायापेटा विलेज में आंध्र प्रदेश में एक लिंकिंग प्रोजेक्ट बनना था, जिसका गोल था कि इरिगेशन, हाइड्रो पावर, ड्रिंकिंग वाटर डाइवर्जन टू कृष्णा बेसिन इंश्योर करना. इसमें रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में सेंटर ने एक हाई लेवल कमेटी एस्टेब्लिश की. इसका लीगल फ्रेमवर्क जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट में है, जो कि वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश करता है. रिवर बोर्ड एक्ट 1956 के अंडर है, जहां रिवर रेगुलेशन डेवलपमेंट देखना होता है. आर्टिकल 262 के अंडर है, जहां पार्लियामेंट को कहा गया है कि ऐसे रिवर डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने की पावर उनके पास है, पार्लियामेंट के पास. और एंट्री जो यूनियन लिस्ट की एंट्री 56 है वहाँ उसके अंडर है, जहाँ की रेगुलेशन है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट को बार किया गया है इसकी जो जुरिस्डिक्शन थी, क्योंकि एक बार इसका ट्राइब्यूनल फॉर्म हो चुका है. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इक्वल सक्सेशन राइट फॉर ट्राइबल वीमेन एस्टेब्लिश किया है रामचरण एंड अदर्स वर्सेस सुखराम एंड अदर्स में. जजमेंट की हाईलाइट थी कि जो ट्राइबल वीमेन को एक्सक्लूजन किया गया है वो आर्टिकल 14 और 15 के अगेंस्ट है. आर्टिकल 38 और 46 जो है सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है. हिंदू सक्सेशन एक्ट ST पे अप्लाई नहीं होता था, बट एक्सक्लूजन जो है ऑटोमेटिक नहीं है अभी. कोर्ट को अप्लाई करना चाहिए इक्विटी, गुड कंसाइंस एंड एब्सेंस ऑफ प्रूवन कस्टम्स के केस में. इसका प्रेसिडेंस है कि मास्टर सर्वांगो वर्सेस उर्चा माहिन 2013 केस में लड़कियों को इनहेरिटेंस ग्रांट की गई थी. तीरथ कुमार वर्सेस दादूराम 2024 में भी ट्राइबल फीमेल्स को इनहेरिटेंस दी गई थी. एडवांसेस जेंडर जस्टिस में जो है इस जजमेंट का हेल्प मिलेगा.
उसके अलावा ये जो कस्टम्स हैं अगर कोई हैं भी है इस तरह के, तो रीजनल होने चाहिए, मोरल होने चाहिए, लीगल बाइंडिंग होने चाहिए। उसके अलावा मस्ट हार्मफुल कस्टम जो है सती, चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक को रिजेक्ट करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अंडर। ये न्यू चीफ अपॉइंट हुए हैं नेशनल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के। उसके इसमें एस्टैब्लिश हुई थी NFRA 2018 में, कंपनी एक 2013 के अंडर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये अकाउंटिंग ऑडिटिंग के रिस्पेक्ट में एक रिकमेंडेशन देता है, मेजर मॉनिटर कंप्लाइंस इंश्योर करता है, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज देखता है। इकोनॉमिक सेंसस में मॉस्पी MOSPI इंटीग्रेशन प्रपोजल, इंटीग्रेटेड 8th इकोनॉमिक सेंसस विद द 16th पॉपुलेशन सेंसस को इंश्योर करने का जो है एक प्रपोजल मूव हुआ है कि 8th इकोनॉमिक सेंसस को इंटीग्रेट कर दिया जाए 16th पॉपुलेशन सेंसस के साथ। इकोनॉमिक सेंसस मॉस्पी करता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को ट्रैक करता है, प्रोवाइड करता है डेटा ऑन ओनरशिप, एम्प्लॉयमेंट, ज्योग्राफी के बारे में। पास सेंसस 1977, 80, 1998, 2005, 13 और 19 में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। सिम्बेक्स जो एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है, 32nd एडिशन हुआ है जो कि सिंगापुर में हुआ है। इस एक्सरसाइज को लायन किंग एक्सरसाइज कहा जाता था शुरू में 94 में जब ये एस्टैब्लिश हुई थी। अभी एनुअली बायलैटरल ड्रिल है बिटवीन इंडियन नेवी और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच में। इसमें स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है कि सपोर्ट करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, विजन सागर को सपोर्ट करता है ये। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। PM विकास, ये माइनॉरिटी स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है जो IIT कोटैम के प्रोजेक्ट से इनिशिएट हुई थी। प्रधानमंत्री अगर विकास के बारे में बात की जाए तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स का एक स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके 5 स्कीम्स हैं इसमें, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर। इसका ऑब्जेक्टिव है स्किल डेवलपमेंट इंश्योर करना 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ के अंडर, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और जोरास्ट्रियंस के बीच में। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को प्रमोट करना, लीडरशिप एजुकेशन को सपोर्ट करना, लिंक करना स्किल इंडिया मिशन के साथ। दोस्तों रिसेंटली एक ग्लोबल फिंडेक्स रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की, इसमें इंडिया जो है उन करता है 90%। दोस्तों ये रिपोर्ट में जो कंटेंट है ठीक नहीं है, इसको हम अभी ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अर्बन विंड स्टिलिंग इफेक्ट्स एरोसॉल स्टडी। तो अभी क्या है 43 सिटीज़ में जो इंडो गंगेटिक प्लेन में है उनमें लोअर एरोसॉल लेवल देखा गया है रदर देन रूरल एरियाज में। तो ये टर्म जो है आया है अर्बन एरोसॉल क्लीन इंडिया, क्लीन आइलैंड्स की ये टर्म है कि ये जो आइलैंड्स हैं जो जिन एरिया में एरोसॉल की परसेंटेज कम देखी गई है इनको अर्बन एरोसॉल क्लीन आइलैंड कहा जाता है। ये कारण है कि वीकेंड सरफेस विंड ड्यू टू द अर्बन स्ट्रक्चर है, उसके अलावा स्लो एंट्री ऑफ डस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स है। तो ये जो है ये आइलैंड क्रिएट करते हैं। आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो DRDO ने अभी लॉन्च की है। इसने ये टेस्ट ने डिस्ट्रॉय किया है 2 एरियल टारगेट्स को लद्दाख में। आकाश प्राइम मिसाइल जो है रगेड वर्जन है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स का, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में हाई एल्टीट्यूड में लो ऑक्सीजन में काम करता है। दोस्तों रिसेंटली CERN ने एक ब्रेक थ्रू अचीव किया मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री को क्लासीफाई करके, जो चार्ज कंजुगेशन है और पैरिटी है इसका वॉलेशन, इस फिनोमेना का वॉलेशन ऑब्जर्व हुआ है बायरॉन में पहली बार में। ये जो चार्ज कॉन्गुलेशन है, कंजुगेशन है, वो तब होता है जबकि एंटी पार्टिकल जो है स्वैप कर लेते हैं। P मतलब पैरिटी होता है जब मिरर इमेज होती है। CP सिमेट्री का मतलब होता है कि जब लॉज अनचेंज रहते हैं वो दोनों के लिए। और CP वायलेशन कब होता है जब कि मैटर बिहेव करता है डिफरेंटली देन एंटी मैटर्स। इसका दोस्तों सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि जो यूनिवर्स में मैटर डोमिनेट करता है डिस्पाइट द बिग बैंग थ्योरी प्रोडक्शन का प्रिडिक्टिंग के कि भाई कि एंटी मैटर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सब लोग जो है मैटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर प्लेसेस न्यूज़ की बात की जाए दोस्तों तो रिसेंटली इंडिया ने 3 लाख मीजल रुबेला वैक्सीन भेजी हैं बोलीविया में, जहाँ की आउटब्रेक हुआ है। ये वेस्ट सेंट्रल साउथ अमेरिका में है, लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों। ये बोलीविया, एक ब्राज़ील है एक तरफ पेरू है, यहाँ पेरुग्वे है, और दोस्तों ये जो कंट्री है वो चिली है, ठीक है। तो एक लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों। अगर आपको पता है तो इस जो लेक है उसका नाम बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए तो t.me/BYIS के चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है बेल आइकन दबा लें। कोई भी अगर आपके सजेशंस हैं तो हम लोग उसको ज़रूर लेना चाहेंगे। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।